Hey everyone, Namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Mumtaz and I make random videos in this channel. और आज का जो ये वीडियो है, this is a part of Fearless Chit Chat series. और आज का जो topic है, this is based on sari. Wait, if you are man, please don't skip this video. I request each and everyone to watch the video full. आधा देख के video judge मत करना please. And में आप decide कर सकते हो what is right, what is wrong. It's up to you. जो भी मैं बोलने वाली हूँ, this is my opinion. So yeah, without any delay, let's begin. If you are not from this world, I mean if you have no idea what sari is, let me read you out loud what sari is. According to Google, sari is a garment that consists of a long piece of cloth that women, particularly in Indian subcontinent, wear draped around their bodies. Personally, I feel साड़ी is as cool, beautiful as other outfit जो हम डे टू डे लाइफ में पहनते हैं, चाहे वो जीन्स टी शर्ट हो या फिर सलवार हो. साड़ी is as cool as the other outfit. Personally, I think कि साड़ी को सिर्फ एक ओकेशन में ही नहीं, you can wear it in different lunch date, dinner date, you can wear it. साड़ी को एक दर्जा दिया गया है कि आपको इसी जगह में पहनना है या इसी जगह में पहनना है. No, I believe साड़ी is as cool as other outfit as well. Having said that, Sari is also considered to be an important in our Indian culture. Now here comes little controversial topic. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी कोई महिला साड़ी पहनती है, she is or any Indian outfit, तभी आपने शायद देखा है कि लोग उनको कम्प्लीमेंट देते हैं. People tend to respect her और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं. But if the same sari or same traditional attire is worn by some male, he is disrespected. But on contrary, आपने देखा होगा कि the same sari or same traditional attire is worn by a man. अगर कोई मर्द साड़ी पहनता है या फिर he wears something traditional attire which is worn by women, then he is disrespected. उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है. People tend to give them derogatory remarks such as छक्का, हिजरा. अगर आपको नहीं पता है, लोग सोचते हैं कि ये गाली है हिजरा, but हिजरा actually it's not a गाली, it's a very pure word. Anyway, वो एक अलग ही टॉपिक है जो कभी और डिस्कस करेंगे. So इस तरह के रिमार्क्स दिए जाते हैं when a male tend to wear sari. So I just want to raise one question to the society that जब भी एक लड़का या फिर एक मर्द साड़ी पहनता है, genuinely पहनता है, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए नहीं, genuinely उनको अच्छा लगता है पहनने के लिए, why do people mock at him? Why do people laugh at him? उनको तंग करते हैं. मैं just इतना पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि तब कहा जाती है आपका कल्चर, आपका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स साड़ी, Where does it go? And कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म का भी असर है, बिकॉज लड़कों को हमेशा साड़ी में उनको मजाकिया तौर से दिखाया गया है. सो आई फील कि सिंस नाउ इट्स 2022, पीपल मस्ट नो कि जो भी था वो पास में, दैट वाज नॉट कूल एट ऑल. जो बचपन में हम लोगों को भी नहीं पता था कि ये सही गलत क्या है, बट नाउ सिंस वी नो, वी आर इनफ एजुकेटेड, अभी हम लोग इतना जानते हैं कि ये सही नहीं है. इस तरह से जो जेन्युइनली पहनना चाहते हैं साड़ी, we shouldn't mock those men. I'm so sorry about the background noise, please ignore. Now let's talk about another topic, which is our education system. Well, I have noticed this huge discrimination in some educational sectors. So it's very good to see the female teachers carry themselves so gracefully in their traditional attire, sari, any traditional attire, which is really good. But at the same time, when some female teachers, kind of sometimes don't feel like wearing the traditional attire and sometimes she asks to wear salwar or kurta, she is mentally harassed by the authorities. So she is forced to wear what she sometimes not comfortable. But at the same time, the male teachers, जो male teachers होते हैं, उनको allow किया जाता है to wear the western outfit. Not even traditional but western outfit. But the female teacher is also not asking for western outfit, she is just asking for salwar and kurta. Male teachers को वो allow किया जाता है जो even हमारे culture का भी नहीं है, that is pant, t-shirts और formal के नाम पे shirt and pant. See, I'm not saying कि male teachers को force किया जाए to wear kurta, dhoti. No, not at all. I just want to question the society, the educational authorities कि जब भी ये डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, तब why a woman or female teacher is asked to maintain the cultural balance and why not the male is asked the same?
दिस इज़ माई अनदर क्वेश्चन। तो मेरा मानना है कि अगर एजुकेशन सेक्टर में ही इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, जो एजुकेटर्स हैं उनके बीच में ही इतना ज़्यादा अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा, देन हाउ अ चाइल्ड विल ग्रो विद दैट एजुकेशन एंड हाउ कैन अ चाइल्ड बी एजुकेटेड। सिर्फ डिग्रीज एंड मार्क्स से तो पास हो ही जाते हैं बट एजुकेटेड नहीं होता है। सो आई थिंक देयर मस्ट बी सम चेंज रिगार्डिंग दिस, ताकि जो जेंजीज है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में अभी, दे विल लर्न कि यू नो क्या सही है और क्या गलत है। जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सही नहीं है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पुराना जो जनरेशन था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनको लगता है कि अगर उन्होंने फेस किया है कुछ, उनको लगता है कि आपको भी फेस करना पड़ेगा। जैसे कि आपने तो कई बार सुना ही होगा, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे घिस घिस के जूते फट गए थे, तुम्हारे लिए ये क्या है वो क्या है। दे थिंक दैट जो उन्होंने किया है वो आप भी करो, बट ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, जो भी आपका जो भी स्ट्रगल था। यू नीड टू ब्रिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ, फॉर अदर्स एज वेल, आई बिलीव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये जो भी आपने वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा, देन मैं आप पे छोड़ना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हो। फील फ्री टू कॉमेंट वट एवर योर ओपिनियन इज। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा ओपिनियन ही सही है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। सो इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड इफ यू थिंक दैट आई पुट सम वैल्यू, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑल्सो गिव अ थम्स अप। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।